Assalamu alaikum student, welcome to another lecture of environmental engineering. So today's lecture number 13, that is we will discuss the discuss the water treatment process named as segmentation process. So in the segmentation process we will discuss the process of the segmentation process. Then we will also go through the design of segmentation tank, and then we will perform some numericals related to segmentation tank. In this lecture we will also discuss the different types of settling process and how the different treatment किस तरीके से different particles जो हैं वो किस तरह की treatment को किस तरह की settlement जो है वो follow करते हैं. So before starting the new lecture, let's have a brief review of our last lecture. So in the last lecture we discussed the water treatment process, the first step of the process, that is coagulation and flocculation. So in that lecture we will discuss about the coagulation process, and we gone through the process of the coagulation, and we have we have discussed different coagulants working efficiency at different pH. Then we have discussed the flocculation process and all the chemistry involved in the coagulation and flocculation process, और फिर डिफरेंट कोगुलेंट की डोज और ऑप्टिमम कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लैब में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ अ जार टेस्ट, हमने उसको भी ब्रीफली डिस्कस किया है. एंड देन वी हैव ब्रीफली डिस्कस the concept of the velocity gradient, and we have gone through different types of flocculators and the design of the flocculators, and then we have performed some numericals related to the calculation of the coagulant dosage and also the design of different types of the flocculator. So let's start with the basic flow diagram of a water treatment. So raw water will first enter into a rapid mixing, that is a coagulation process, जहाँ पर हम coagulant को add करते हैं और rapid mixing allow करते हैं ताकि particles जो हैं वो जो भी आपने coagulant डाले हैं वो throughout the chamber जो है वो mix हो जाए. After coagulation process, the water is sent to a flocculation process in which we allow the particle to form a bigger particles. ठीक है, जहाँ पर हम slow mixing करते हैं और particles को allow करते हैं कि वो बड़े particles, small particles जो हैं वो bigger particles में convert हो जाएं. So after flocculation, the water will be sent into a segmentation tank. ठीक है, सेगमेंटेशन टैंक को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये वो टैंक है या वो चैम्बर है जहाँ पर पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन होते हैं इन द चैम्बर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, सो पहले स्टेप में आप पार्टिकल को डिस्टेबलाइज करते हैं, देन you allow those particles to form the bigger size particles, and then after forming a bigger size particles you will pass the water through a segmentation tank. So in this tank the water is stayed in this tank, in which the bigger particles or the flocks will be settled down in the bottom of the tank, and it is collected at the end of the hopper and dumped as a sludge. So segmentation is basically the process of separation of suspended particles from water by the force of gravity. ठीक है, so it's a separation process of unstable and destabilized suspended particles from suspension by the force of gravity. The application of segmentation in water treatment, the settling tank or the segmentation tank is used to remove the coagulated and flocculated water before sending the water to a filtration plant. ठीक है, ताकि जितने भी बिगर साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो रिमूव्ड हो जाएं और हमारे पास जो फिल्ट्रेशन प्लांट में हमने पोर्ट साइज मीडिया जो भी यूज़ किया है उसमें जो है उसके प्रोसेस में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे. The second application of the segmentation tank and the settling tank is that the settling of a coagulated and flocculated water in a softening plant, and the third one is the settling of a treated water in iron and magnesium removal plant. So these are the application where for which purpose we are using a segmentation tank to treat the water.
So the next term which is very important, that is the factor affecting segmentation. वो कौन से factors हैं जो कि आपके segmentation process की efficiency को increase करते हैं या segmentation के process को enhance करते हैं. ठीक है, सब जो भी particles आपके water में present हैं वो depend करते हैं depend upon two factors. The first one is the characteristics of the particles. Will depend upon the characteristics of the particle, and second one is the concentration of the particles. ठीक है, जितने भी characteristics और concentration of particle को हम इस तरह से explain करेंगे. So जितने भी heavy size particles होते हैं वो ज़्यादा जल्दी settle down होते हैं. ठीक है, सो characteristics में आपके पार्टिकल की साइज, उनके सेटलिंग वेलोसिटी, वो सब आ जाता है. देन द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, तो जितने भी कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा सेलिब्रेट होंगे. जितना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, पार्टिकल्स विल टेक मोर टाइम टू सेटल डाउन इन द टैंक. सो वी विल डिस्कस दीज टू फैक्टर्स इन डिटेल कि किस तरीके से ये आपके सेगमेंटेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करता है. तो सबसे पहले वी विल गो थ्रू the characteristics of the particles. ठीक है, particles के characteristics में आपके पास मैंने बताया था कि size of the particle जो है उसको हम consider करते हैं. ठीक है, वो particles जो कि small size के हों, ठीक है, और उनकी shape और जो specific gravity है वो वक्त के साथ साथ change ना हो, यानी small size particles. ठीक है, fluctuating particles वो particles जो कि bigger flock में convert हो जाते हैं, larger size of particles. अब जो स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको हम डिस्क्रीट पार्टिकल्स कहते हैं. ठीक है, वो पार्टिकल्स हुज साइज, शेप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी डू नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है, ये सिंगल पार्टिकल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं, ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ अटैच नहीं होते, और ये एज अ सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो आपके सेगमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन होते हैं. ठीक है, सो दैट पार्टिकल्स आर नोन एज डिस्क्रीट पार्टिकल्स. सेकेंड हमारे पास आ जाता है फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल हुज सरफेस प्रॉपर्टीज आर सच दैट दे एग्रीगेट अपॉन कॉन्टैक्ट. ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी सरफेस प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि क्योंकि हमने फ्लक्चुएंट पार्टिकल्स में, जैसे कि आपको बताया कि हमने कोगुलेंट्स डाले होते हैं, हमने पार्टिकल को डिस्टेबलाइज किया होता है ताकि वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकें और अपने पार्टिकल के साइज को इंक्रीज कर सकें. ठीक है, सो जितने भी फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल्स होते हैं दे चेंज देयर साइज, शेप्स and specific gravity with the passage of the time as they contact with other particles. सेकेंड फैक्टर जो था, जो कि आपके सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स को इफेक्ट करता है सेगमेंटेशन टैंक में, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन. ठीक है, कंसंट्रेशन पार्टिकल्स में आपके डाइल्यूट सस्पेंशन है, यानी वाटर की मिकदार ज़्यादा है और आपके पार्टिकल्स जो हैं वो कम लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है. दैट विल बी नोन एज डाइल्यूट सस्पेंशन. Suspension in which the concentration of particle is not sufficient to cause sufficient displacement of water as they settle, or in which the particle will not be close enough for velocity field interference to occur. ठीक है, क्योंकि dilute particles हैं, they will be a low number of particles present in the water, they will not displace the water by settling in the tank. सेकेंड हमारे पास आ जाता है कंसनट्रेटेड सस्पेंशन. सस्पेंशन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज टू ग्रेट टू मीट द कंडीशन मेंशन फॉर द डाइल्यूट सस्पेंशन. ठीक है, नहीं वो इतने कंसनट्रेटेड होते हैं कि पार्टिकल जो हैं वो जब सेटल डाउन होते हैं तो डिस्प्लेस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, और पार्टिकल्स जो भी उनके पास आता है उनके साथ जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है, types of settling are two basic classification depending upon the nature of the solids. The settling is characterized according to the nature of the solids, as we discussed in a previous slides, that the particle will be settled down as a discrete particle or as a fluctuant particle. So discrete particles are those particles which have individual identity and it will not form any bond with other particles, and it will settle down as an individual or alone particle in the settling chamber. The second type of the particle which we discussed is the floccuant particle. So a floccuant particle will combine with other particle and form a bond with other particle to form to increase the particle size, and it will settle down under the and then it will settle down in the settling chamber.
So according to the nature of the solid particle, the settling is divided. The first one is a discrete settling and second one is a Floquant settling. So as the name described, in discrete settling, where the discrete particle will settle down in the chamber, and a Floquant settling where the Floquant particles will settle down in the chamber. So in the next slide we will briefly discuss these two settling types. Now we will discuss these types of settling one by one, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था. So discrete settling को हम टाइप 1 settling भी कहते हैं, ठीक है. So in this settling हमारे पास dilute suspension होती है, यानी low concentration of particles are present and particles act independently. So due to acting independently, their size and shape will not change and the particle will settle down with a constant velocity. Type 2 settling is a Floquant settling, which is done in the concentrated suspension, in which the particle interactions are very important. Particle may collide and stick together to form flocks settling quickly. So the size and shape will change, and depending upon the coagulation process or the coagulant used for the floccuating settling. So comparison of type 1 and type 2 settling segmentation tank. So जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं, ये हमारे पास y एक्सिस के ऊपर डेप्थ है और x एक्सिस के ऊपर टाइम और डिस्टेंस डाउन द टैंक, ठीक है. सो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, क्योंकि टाइप 1 इज़ अ डिस्क्रीट सेटलिंग पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ सेटल डाउन होता है. सो इट विल टेक मोर टाइम टू सेटल डाउन इन द सेगमेंटेशन टैंक एज कम्पेयर टू टाइप 2, दैट इज़ अ फ्लॉक्वेटिंग सेटलिंग, विल टेक अ लेस टाइम to remove from the segmentation tank. Now next we will discuss the settling of discrete particles. ठीक है, अब discrete particle जब settle down होते हैं तो किस टाइप के forces उस particle के ऊपर act कर रहे होते हैं, ठीक है. हम उन चीज़ों को ज़रा briefly लेके discuss करेंगे. So discrete particles are those particles which do not change their size, do not change their characteristic or property, ठीक है. That is the density or the size. So when a particle in suspended water, it initially has two forces acting on it. So जब particle water में present होता है, उसके ऊपर initially दो forces act कर रहे होते हैं. The first force is the force of buoyancy, ठीक है, जो वाटर से ऊपर की तरफ उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है. सेकेंड वन इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि पार्टिकल की वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज़ इक्वल टू density of the particle and the velocity of the particle. G is acceleration due to gravity. Force of buoyancy will depend upon the density of the fluid, velocity of the particle, and G is the acceleration due to gravity. So जब भी कोई discrete particle water में suspend कर रहा है तो उसके ऊपर दो forces act कर रहे होते हैं. The one force, the force of buoyancy, which is affected by the water molecules in the upward direction. The second flow The second force is the second force is due to the weight of the particle, that is the force of gravity, which will act in the downward direction. So once the motion has initiated, जब पार्टिकल सस्पेंशन में वो मूव नहीं कर रहा, उस वक्त हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं. लेकिन जब पार्टिकल मूव करता है, यानी ट्रैवल करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द थर्ड फोर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू अ विस्कस फ्रिक्शन, ठीक है. थर्ड फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज ड्रैग फोर्स, ठीक है. जो ड्रैग फोर्स है दैट इज़ बेसिकली फोर्स जो कि आपके फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है. सो दिस इज़ अ पार्टिकल. इसमें हमारे पास फर्स्ट टू फोर्स इनिशियली जब पार्टिकल मोशन में ना हो, स्टडी हो, तो हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, दैट इज़ द फोर्स ऑफ buoyancy and the force of gravity. Second one, when particles start moving, the third force will act upon it due to the friction between the particle and the water molecules, and that force is known as a drag force, and that is equal to CD, that is a drag coefficient. A is the area of the particle, B, rho is the density of the liquid of the water, V is the velocity of the particle divided by 2. So force balance for a discrete particle, that is in the settling, ठीक है. जो भी आपके पास acceleration
डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ऑफ द पार्टिकल, यानी चेंज इन velocity of the particle that should be equal to the force acting on the that should be equal to the force acting on the जो आपके फोर्थ हैं दैट इज द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है एंड वी टेक इट एज अ पॉजिटिव। फोर्स ऑफ buoyancy मूविंग अपवर्ड यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, दैट इज फोर्स ऑफ buoyancy। सेकेंड वन इज अ ड्रैग कोफिशिएंट या ड्रैग फोर्स जो कि ऑपोजिट टू द पार्टिकल एक्ट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एक्ट कर रही है, सो माइनस टी। After an initial transit period, the acceleration, that is the change in velocity with respect to time, becomes zero and the settling velocity becomes constant। ठीक है, जब आप आफ्टर इनिशियल ट्रांजिट पीरियड जो आपकी एक्सेलरेशन है यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो क्योंकि डिस्क्रीट सेटलिंग है, डिस्क्रीट सेटलिंग में हमने यही डिस्कस किया है कि जो पार्टिकल्स हैं वे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है सेटल डाउन होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यही बात हम ये कह रहे हैं कि जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट हो जाती है तो आफ्टर अ ट्रांजिशन पीरियड जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है दैट इज़ बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है, तो जो आपके इक्वेशन की राइट साइड होगी दैट विल बिकम अ ज़ीरो। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर जितनी फोर्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी और यहाँ से हम फाइंड आउट कर देंगे। सो आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल ऑफ एनी शेप। सो ये जो आपके पास फाइंड आउट हुई दैट इज़ द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कोई जिस मर्जी शेप का हो। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ठीक है, अभी हमने डिफरेंट शेप ऑफ द पार्टिकल्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम स्फेरिकल पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल में अगर हमने सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू 4 डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डी इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, सी डी इज द ड्रैग कोएफिशिएंट एंड रॉ इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे जो ड्रैग कॉफिशेंट है दैट इज सी डी, दैट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है जैसे जैसे हमारे पास रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज करता है। अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 है तो हमारे पास जो फ्लो कंडीशन होगी दैट इज़ अ लेमिनर फ्लो। इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन 1000 देन द टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन जो है वो हमारे पास अचीव होगी। सो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, अगर हम जो बेसिकली अब हम स्फेरिकल पार्टिकल के ऊपर बात कर रहे हैं तो स्फेरिकल पार्टिकल में अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ जिसमें हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होता है फॉर अ स्फेरिकल पार्टिकल जिनका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर से कम हो, और लेमिनर फ्लो के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जिनका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 हो। Settling velocity can also be used in terms of kinetic viscosity, that is V in centimeter square per second. So Vs is equal to G into d square, specific gravity of the particle minus specific gravity of the fluid. So इसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एस पी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और 18, सो एस एस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, वी जो है स्मॉल म्यू दैट इज द काइनेटिक विस्कोसिटी इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो रेनॉल्ड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय that is equal to Vs, that is the setting velocity into diameter of the particle into density of the fluid divided by mu coefficient. Mu is the absolute viscosity. ठीक है, सो इफ़ यू म्यू यानी एब्सोलूट विस्कोसिटी को डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इट विल कम इनटू अ काइनेटिक विस्कोसिटी, तो ये म्यू में कन्वर्ट हो जाएगा यानी स्मॉल v में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्मॉल v दैट इज इक्वल टू u एब्सोलूट विस्कोसिटी, व्हेन यू विल डिवाइड एब्सोलूट विस्कोसिटी विद द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड यू विल गेट द काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड।
So now we will perform a one numerical related to the settling velocity of the particle by using a Stokes law. Calculate the settling velocity of a sand particle of a size 0.1 millimeter in size at 10 degrees Celsius. Take a specific gravity of a sand is 2.65 and kinetic viscosity at 10 is 1.3097 raised to power minus 2 centimeter square per second. तो सबसे पहले आपने इसकी सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग अ फार्मूला. सो यू हैव ऑल द गिवन डाटा. सो आप इस इक्वेशन में तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. देन यू विल आल्सो सो वेलोसिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी 0.687 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. आफ्टर दैट यू विल चेक इट फॉर द रेनॉल्ड नंबर. ठीक है. सो रेनॉल्ड नंबर में आपके पास वी एस आपने कैलकुलेट कर दी है. डायमीटर आपको पता है. काइनेटिक विस्कोसिटी भी आपको गिवन है. सो जो आपका रेनॉल्ड नंबर आएगा दैट इज़ 0.521 विच इज़ लेस देन द रेनॉल्ड नंबर फॉर अ लैमिनर फ्लो दैट इज़ 1. सो द फ्लो कंडीशन इज लैमिनर फ्लो और स्टोक्स लॉज के ऊपर एप्लीकेबल है. सो यू कैन फाइंड आउट द सेटलिंग वेलोसिटी. जो आपने सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट की है बाय यूजिंग अ स्टोक्स लॉ, सो इट इज़ एप्लीकेबल ऑन दिस न्यूमेरिकल. जी, उसके बाद हमने डिस्कस करना है सेगमेंटेशन बेसन के बारे में या सेगमेंटेशन चैम्बर के बारे में. ठीक है. सो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास ये आपके पास क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है सेगमेंटेशन टैंक का. सो ये हमारे पास सेगमेंटेशन टैंक है जिसमें हमारे पास इनलेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख रहे हैं आगे हमारे पास जो है वो परफोरेटेड प्लेट लगी हुई या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बेफल लगे होते हैं जो बेसिकली टैंक में वाटर को अलाउ करते हैं. ये पर्पस प्रोवाइड करने का ये होता है कि जो भी फ्लूइड आ रहा है वो उसकी मतलब हाई वेलोसिटी की वजह से जो इनसाइड फ्लूइड है वो डिस्टर्ब ना हो. ठीक है. और उस लिक्विड जो है वो थॉरली मिक्स हो. सो हमारे पास सेगमेंटेशन बैंक में 4 जोन्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ नोन एज इनलेट जोन. इनलेट के बाद हमारे पास आता है सेटलिंग जोन एंड आफ्टर सेटलिंग जोन वी हैव स्लज जोन और स्लज जोन के पास आउटलेट जोन आता है. ठीक है. सो मैं यहाँ पर इसको ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज जोन्स. So first of all the inlet zone basically provide a smooth transition. ठीक है. जहाँ पर हम यूज़ करते हैं perforated plates और baffles को from the ताकि हमें smooth transition provide कर सकें from the influent flow and should distribute the flow uniformly across the inlet of the tank. ठीक है. नॉर्मली हम baffle यूज़ कर सकते हैं और perforated walls यूज़ कर सकते हैं with the hole across the width of the tank. After that हमारे पास आता है settling zone. So settling zone is basically the largest portion of the segmentation basin and it provide the calm area जहाँ पर आपके particles जो हैं वो settle down होते हैं under the force of gravity. Then we have a sludge zone. Sludge zone is basically located at the bottom of the tank which provide the storage area for the sludge before it is removed for further treatment and disposal. Outlet zone जो है the basin outlet zone should provide a smooth transition from the segmentation zone to the outlet from the tank. So here यहाँ पर आपके पास जो स्लाइड्स में है वो तमाम डिफरेंट जो है वो स्पेसिफिकेशन जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द डिज़ाइन ऑफ इनलेट जोन वो प्रोवाइड की गई हैं. ठीक है. सो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. इनलेट जोन. द इनलेट और इन्फ्लुएंट जोन शुड प्रोवाइड अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द इन्फ्लुएंट फ्लो एंड शुड डिस्ट्रीब्यूट द फ्लो यूनिफॉर्मली अक्रॉस द इनलेट टू द टैंक. The normal design includes baffles that gently spread the flow across the total inlet of the tank and prevent short circuiting in the tank. The baffle could include a wall across the inlet, perforated with the hole across the width of the tank. Basin inlet should be designed to minimize high flow velocities near the bottom of the tank. If high flow velocities are allowed to enter the sludge zone,
The sludge could be swept up and out of the tank. Sludge is removed for further treatment from the sludge zone by scrubbers or vacuum devices which move along the bottom. ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स के इनलेट हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें बैफल फैंस हैं. ठीक है, सो यहाँ पर परफोरेटेड यानी बैफल्स प्रोवाइड किए होते हैं जो कि आपके इनलेट में डिफरेंट फ्लोज को डिस्क्राइब करते हैं. सो ये आपके पास प्लान और ये प्रोफाइल पे पिक्चर है जो कि प्रोविजन ऑफ इनलेट जोन जो है वो डिस्कस की हुई है. ठीक है, ये हम लोग ऑरिफ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास प्लेट्स होती हैं जिसमें डिफरेंट साइज़ के ऑरिफ्रेज यानी जिसमें डिफरेंट साइज़ के स्पेसेस होती हैं जिस तरह की आपकी सीव होती है. ये उस तरह का एक वॉल प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करती है पार्टिकल इनलेट. Settling zone. The settling zone is the largest portion of the segmentation basin as we discussed in the previous slide. So this zone provides the calm area which are necessary for the particles to settle down. Sludge zone is basically जो हमने discuss किया था, that is located at the bottom of the tank and provide the storage area for the sludge before it is removed for additional treatment. Outlet zone. The basin outlet zone should provide a smooth transition from the segmentation zone to the outlet from the tank. This area of the tank also control the depth of the water in the basin. ठीक है, weirs set at the end of the tank control the overflow rate and provide the solids from rising to the weir and leaving the tank before they settle out. सो इस सेगमेंटेशन टैंक में हमारे पास दो जोन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज़ द इनलेट जोन एंड द आउटलेट जोन. ठीक है, सो इन दोनों जोन्स का डिज़ाइन होना, प्रॉपरली डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों जोन्स को प्रॉपरली डिज़ाइन होगा तो आपके पास जो फर्दर टू जोन्स हैं वो अपने लिए प्रॉपर वर्किंग या एफिशिएंट वर्किंग शो कर सकते हैं. सो दीज आर द पिक्चर. ये आपके पास रेक्टेंगुलर सेगमेंटेशन चैम्बर है. सो दीज आर द जहाँ पर आपके पास आप देख रहे हैं कि छोटी वेयर्स कंस्ट्रक्ट की हुई हैं आउटलेट के ऊपर ताकि आपके पास एक यूनिफॉर्मली फ्लो जो है वो टैंक से निकल सके ताकि आपकी जो डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, ये आपके पास सर्कुलर में आ जाता है कि डिफरेंट स्लो आउटलेट्स हैं फ्लो के जो कि आपके इस टैंक के अंदर पानी को कंट्रोल करते हैं. अच्छा जी, उसके बाद हम डिज़ाइन के ऊपर आएंगे. उससे पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर देते हैं जैसे कि सेगमेंटेशन टाइम हम टर्म यूज़ करते हैं. सो सेगमेंटेशन टाइम इज़ बेसिकली द टाइम फॉर विच द पार्टिकल, वो टाइम है जितनी देर के लिए पार्टिकल उस टैंक के अंदर रहता है. ठीक है, सो थ्योरेटिकल टाइम फॉर विच द पार्टिकल विल स्टे इन द सेगमेंटेशन टैंक, दैट इज़ नोन एज अ डिटेंशन टाइम and it can be calculated by the volume of the tank divided by inflow rate. ठीक है, जो भी आपके वॉल्यूम ऑफ टैंक है डिवाइडेड बाय क्यू, इट विल गिव यू अ डिटेंशन टाइम कि कितने टाइम के लिए पार्टिकल जो है वो उस चैम्बर के अंदर जो है वो स्टे करेगा. स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज फ्लो रेट. ठीक है, एक्चुअल टाइम दैट इज इक्वल टू फ्लो थ्रू टाइम. तो डिटेंशन टाइम बेसिकली थ्योरेटिकल टाइम होता है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं बाय नोइंग द वॉल्यूम ऑफ द टैंक एंड द इनफ्लो रेट. ठीक है, फ्लो थ्रू टाइम इज़ बेसिकली द एक्चुअल टाइम जो कि प्रैक्टिकली वो लिक्विड उसमें एक्चुअल प्रैक्टिस में जितना टाइम लेता है दैट इज़ नोन एज एक्चुअल टाइम और अ फ्लो थ्रू. सो आइडियल सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सो अब हमने एक्चुअली बेसिकली सेगमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक सम अजम्पशंस. ठीक है, सो उसके लिए हम एक आइडियल सेटलिंग टैंक कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो हमारे पास एक आइडियल सेटलिंग टैंक है. ठीक है, जिसकी लेंथ L है और डेप्थ जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेप्थ D. ठीक है, Q जो है दैट इज़ द फ्लो विच इज़ एंटरिंग इन द सेगमेंटेशन टैंक. Vs is the settling velocity of the particle. Vw is the velocity of the water or the fluid. ठीक है, सो ये जो आपको एक रेड ब्लैक कलर का पाथ दिखाया है दैट इज़ बेसिकली कि यहाँ से पानी एंटर हुआ है, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विच इज़ सेटलिंग in the tank. So when will particle will move, the two components of the force will act. ठीक है, the first component of the velocity will act in a vertical direction and the second one will act as a act in a horizontal direction.
ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल प्रेजेंट कर रहा है वो इक्वल है आपके पार्टिकल के सेटलिंग वेलोसिटी से, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो आपके पास इक्वल है वेलोसिटी ऑफ द वाटर के। ठीक है। सो L इज द लेंथ ऑफ द सेटलिंग जोन, D इज द डेप्थ ऑफ द सेटलिंग जोन, W जो है दैट इज द विड्थ ऑफ द सेटलिंग जोन, VS इज द सेटिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, VW is the horizontal velocity of the water, Q is the inflow of the tank, V जो है that is the volume of the tank, और AS जो है वो हमारे पास surface area of the tank है। So for ideal segmentation tank we have to consider a few assumptions. The first assumption is a plug flow condition exists in the tank. प्लग फ्लो कंडीशन क्या होती है? प्लग फ्लो कंडीशन हमने डिस्कस किया था पिछले स्लाइड्स में कि इसमें ना हमारे पास जो है वो मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, हमारे पास मिक्सिंग नहीं होगी और एक हमारे पास मिक्सिंग नहीं होती है, और जो आपकी कंसनट्रेशन है वो थ्रू आउट द टैंक पार्टिकल्स की वो डिक्रीज होती है। सेकेंड हमारे पास अजम्पशन है दैट इज़ अ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल वेलोसिटी इन द सेटलिंग वेलोसिटी, यानी जो पार्टिकल या फ्लूइड मूव कर रहा है, जो पार्टिकल मूव करेगा जो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ या इनको सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो आपके वेलोसिटी ऑफ वाटर है दैट इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इन द सेटलिंग जोन। थर्ड हमारे पास जो assumption है दैट इज़ द यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो जितने भी डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन द टैंक। फोर्थ assumption द पार्टिकल रिमूव वंस दे रीच द बॉटम ऑफ द सेटलिंग जोन। सो फोर्थ हमारे पास ये कि वो पार्टिकल्स जो सेटलिंग जोन के टॉप को टच करेंगे वो इस प्रोसेस में या वाटर से रिमूव कंसीडर हो गए। फिफ्थ वन हमारे पास आता है पार्टिकल सेटल डिस्क्रीटली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर पार्टिकल एट एनी डेप्थ। ठीक है, हम डिस्क्रीट सेटलिंग को यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी को, हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फॉर आइडियल डिस्क्रीट सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इन द रेक्टेंगुलर टैंक टू कंपोनेंट्स ऑफ अ पार्टिकल वेलोसिटी is acting in a settling zone. The first one is a horizontal velocity which is represented by VW and that is considered constant. Second one is a terminal settling velocity of the particle which is denoted by Vs and different for particles with different size, shapes and density. ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर टैंक है। द पार्टिकल विल एंटर फ्रॉम द इनलेट जोन दैट एंटर एट द टॉप ऑफ द बेसन विल सेटल डाउन इन द सेटलिंग जोन just before the outlet with the settling velocity which is equal to Vs or the critical settling velocity which is VCS. यहाँ पर जो आपके पास VCS है that is a critical settling velocity or a fixed settling velocity. अच्छा जी, अब हमारे पास बात ये करने को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ अ क्रिटिकल सेटलिंग वेलोसिटी और अ फिक्स सेटलिंग वेलोसिटी। क्रिटिकल और फिक्स सेटलिंग वेलोसिटी इज़ बेसिकली ये होता है कि जो पार्टिकल विल सेटल डाउन बाय ट्रैवलिंग अ वर्टिकल डिस्टेंस d इन अ टाइम t with the settling velocity which is a critical settling velocity. Critical settling velocity basically एक theoretical settling velocity है जो हम find out करते हैं by using the depth of the tank and the retention time of the tank of the particle. ठीक है, वो हमारे पास critical settling velocity आ जाती है। आप इसको ये कह सकते हैं कि VCS is basically a theoretical calculation of the settling velocity. VC is depth of the tank divided by detention time, that is T over dt. Detention time we already discussed, that is calculated by using a volume of the tank over a flow rate. ठीक है, volume of the tank will be length into width into depth divided by Q. Length into width is basically equal to the surface area of the tank. ठीक है, surface area into depth divided by Q. Now we will
put the value of detention time in the equation number 1, which is the equation for a critical settling velocity of the particle, that is the depth of the tank over detention time. So यहाँ पर आप detention time की value put करेंगे surface area into depth of the tank over Q. So यहाँ पर depth by depth जो है वो cancel out हो जाएगी, and then we will left with the Q over A. ठीक है, that is a flow rate over a surface area. That is known as surface overflow rate. ठीक है, that is known as surface overflow rate, which is Q over surface area, और इसको हम डिनोट करते हैं SOR से, SOR. ठीक है, surface overflow rate. So segmentation tank जो है वो बेसिकली डिज़ाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ surface overflow rate. ठीक है, सो यहाँ पर अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि सरफेस ओवरफ्लो रेट या पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो किस तरह से सेटलिंग को इफेक्ट करती है. ठीक है, लेट्स कंसीडर एनी पार्टिकल्स एंटरिंग इन द इनलेट जोन विद द सेटलिंग वेलोसिटी Vs which is greater than the critical settling velocity will be removed 100% regardless of the starting position depth, because their trajectory will take from inlet into a sludge zone before they enter the basis. So वो particles जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी हमारी थ्योरेटिकल सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, वो पार्टिकल्स ऑफ कोर्स 100% रिमूव्ड होंगे. सो बेसिकली जो क्रिटिकल सेटलिंग वेलोसिटी है वो बेसिकली हमारे पास थ्योरेटिकल सेटलिंग वेलोसिटी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो हमने कैलकुलेट किया है. सो वो पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट जो वाटर में है जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी हमारे कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, वो पार्टिकल्स 100% रिमूव्ड होंगे आपके टैंक से, रिगार्डलेस कि वो टैंक के किस डेप्थ से एंटर होते हैं. ठीक है, जो भी आपकी सेटलिंग है पार्टिकल्स की ना, वो डिपेंड बेसिकली करती है आपके डेप्थ ऑफ द टैंक कि वो कहाँ से एंटर होती है. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर डिफरेंट कलर की ट्रैजेक्टरीज देख रहे हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, एक ग्रीन कलर की. ठीक है, सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो पहला केस वो है जिसमें हमारे पास जो सेटलिंग वेलोसिटी है पार्टिकल्स की विच इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल सेटलिंग वेलोसिटी विल बी रिमूव 100% regardless of the position or the depth of the particle enter in the inlet particles. सो वो पार्टिकल्स जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी क्रिटिकल सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, उस पर पोजीशन उनकी कि वो किस डेप्थ पे एंटर हुए हैं वो डिपेंड नहीं करेगी. वो जिस मर्ज़ी डेप्थ पे एंटर होगी वो जिस मर्ज़ी डेप्थ पर एंटर होगी वो पार्टिकल्स रिमूव्ड हो जाएंगे आपके वाटर में से. सेकेंड हमारे पास आता है पार्टिकल्स हैविंग अ सेटलिंग वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल सेटलिंग वेलोसिटी. ठीक है, वो पार्टिकल्स जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी हमारे थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड सेटलिंग वेलोसिटी से कम है वो हमारे पास रिमूव होते हैं इन द रेशियो ऑफ Vs ओवर Vcs. ठीक है, और वो पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करेंगे. ठीक है, अगर वो पार्टिकल्स जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी हमारे क्रिटिकल सेटलिंग वेलोसिटी से कम है वो डिपेंड करता है अपॉन द पोजीशन ऑफ द टैंक. अगर वो लोअर डेप्थ के ऊपर एंटर हुए हैं तो वो पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे 100%. अगर वो टॉप ऑफ द टैंक एंटर हुए हैं तो वो पार्टिकल्स रिमूव नहीं होंगे टैंक से. सो इस फिगर से हम क्लियरली हम देख सकते हैं दैट पार्टिकल एट द टॉप ऑफ द बेसन विल पास थ्रू द सेटलिंग जोन एंड एग्जिट इन द आउटलेट जोन एंड विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द वाटर. However, particles starting at the lowest position will enter the sludge zone before exiting the basin and will be removed with a fraction Vs over Vc. All particles जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी हमारे क्रिटिकल सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा है वो कम्प्लीटली रिमूव होंगे, और जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी कम है हमारे क्रिटिकल वेलोसिटी से वो हमारे पास एक प्रोपोर्शन या एक रेशियो में रिमूव होंगे डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, जहाँ से डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ फ्रॉम वेयर इट एंटर इन द सेगमेंटेशन टैंक. सो रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ अ सेटलिंग टैंक. अब हमें पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सरफेस ओवरफ्लो रेट है वो हमारे पास क्रिटिकल डिज़ाइन पैरामीटर है सेगमेंटेशन टैंक का.
और जो हमारे पास SOR है यानी सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ डेप्थ एंड डिटेंशन टाइम। ठीक है, डेप्थ और डिटेंशन टाइम के इंडिपेंडेंट है। सरफेस एरिया ऑफ अ टैंक जो है सरफेस एरिया ऑफ अ टैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सिग्निफिकेंट पैरामीटर है। बाय चेंजिंग हम सरफेस एरिया को चेंज करके रिमूवल एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सरफेस ओवरफ्लो रेट दैट इज़ इक्वल टू द फ्लो ओवर अ सरफेस एरिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर SOR को हमने क्रिटिकल डिज़ाइन पैरामीटर है सरफेस ओवरफ्लो रेट के साथ को अचीव को बेटर करना है तो हमें अपने सरफेस एरिया को चेंज करना पड़ेगा टू इन्हांस द रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ अ सेगमेंटेशन टैंक। तो ये हमारे पास पिक्चर्स हैं रेक्टेंगुलर बेसन की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास प्लान है जो कि टॉप व्यू से शो किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास इनलेट प्रॉपर्ली डिज़ाइन हुआ हुआ है और आउटलेट भी प्रॉपर्ली डिज़ाइन हुआ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्क्रैबल बोर्ड हैं जो कि बॉटम में लगे हुए होते हैं जो कि आपके स्लज पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसमें हमारे पास ये स्क्रैबल बेड्स हैं जिसके ऊपर आप स्लज को जितने भी पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं वो यहाँ से ट्रैवल होके इस हॉपर में कन्वर्ट हॉपर में कलेक्ट होता है, यहाँ से इसको रिमूव किया जाता है और आपका क्लियर वाटर जो है वो इनलेट से रिमूव हो जाता है। नाउ द डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ सेगमेंटेशन टैंक। ये आपके पास डिज़ाइन क्राइटेरिया है सेगमेंटेशन टैंक का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिनिमम नंबर ऑफ टैंक्स कितने लगाने हैं, टू इसलिए कि अगर वन ख़राब हो जाए या स्टैंड बाय या रिपेयर पे हो जाए तो हमारे पास एक स्टैंड बाय पे यूनिट अवेलेबल होना चाहिए। वाटर डेप्थ जो है वो 2 to 5 मीटर्स हैं, 2 मीटर्स और डीप टैंक्स 6.5 मीटर्स आल्सो यूज्ड। डिटेंशन आवर्स या डिटेंशन टाइम जो है वो 2 to 8 आवर्स होना चाहिए जो भी पार्टिकल उसमें स्टे कर रहा है सेगमेंटेशन टैंक में। ओवरफ्लो रेट जो है वो 20 to 33 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, दैट इज़ अ सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है वो आपके पास 20 to 33 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होना चाहिए। वेयर लोडिंग रेट that is the loading rate at the end of the at the outlet of the pipe। so उसको आपने किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो आपके पास 250 मीटर क्यूब पर मीटर डे से कम नहीं होना चाहिए। स्लज स्टोरेज कैपेसिटी जो आपने प्रोवाइड करनी है वॉल्यूम में दैट इज़ 20% आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो प्रोवाइड करना है फॉर अ स्लज स्टोरेज। रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो लेंथ 30 मीटर्स होना चाहिए, विड्थ आपके पास 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 मीटर तक होनी चाहिए। लेंथ टू विड्थ रेशो शुड बी लेस देन और इक्वल देन 4:1, जनरली हम 2:1 यूज़ करते हैं। बॉटम स्लोप जो है वो 2 to 1% विद और विदाउट स्क्रैबर्स। सर्कुलर टैंक अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डायमीटर शुड बी मैक्सिमम ऑफ 30 मीटर्स, द डेप्थ ऑफ द टैंक इज़ 3 to 5 मीटर्स, बॉटम स्लोप that should be between 8% hopper plus scrabbers. Then we will perform some design numericals जिसमें हम segmentation tank को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, so first numerical is to design the segmentation tank to treat a flow of 25,000 meter cube per day, surface overflow rate 25 meter per day, detention time is 2 hours, sludge storage capacity आपने 20% of effective volume provide करना है। Under the ideal condition, word particle size will be removed if the kinetic viscosity is 1.210 raised to power minus 2 meters square per second and the specific gravity of the particle is 2.65. तो सबसे पहले आपके पास देखें जो डाटा गिवन है, आपके पास फ्लो गिवन है, सरफेस ओवरफ्लो रेट गिवन है, डिटेंशन टाइम गिवन है, स्लज स्टोरेज कैपेसिटी गिवन है, म्यू गिवन है और आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। अब आपने जो डिज़ाइन करना है सेगमेंटेशन टैंक को, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने सर्कुलर डिज़ाइन करना है या आपने रेक्टेंगुलर टैंक डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिज़ाइन करना पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर टैंक को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है वो सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सरफेस ओवर रेट फ्लो फार्मूला। Surface overflow rate formula that is equal to Q over AS. So you will calculate the AS. So 25,000 divided by 25, it will give you 1,000 meters square.
सो आपके पास सरफेस कितना है 1000 मीटर स्क्वायर और मिनिमम नंबर ऑफ टैंक्स आप 2-3 लगा सकते हैं, लेकिन हम इस केस में 4 लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्लो ज़्यादा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टैंक्स हम चेंज कर सकते हैं, ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड है नंबर ऑफ टैंक्स फाइंड आउट करने का। अगर हमारे लेंथ और विड्थ जो है और डेप्थ जो है विद इन द रेशो नहीं आती या डिज़ाइन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं आती, तो हम नंबर ऑफ टैंक्स को रिड्यूस या इंक्रीज़ कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ 4 टैंक, अब ये सिंगल एरिया का हमारे पास 4000 था, 4 टैंक के लिए हमारे पास इसको आप डिवाइड कर देंगे तो एक टैंक का सरफेस एरिया 250 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, लेंथ टू विड्थ रेशो हम रेक्टेंगुलर में शुड बी लेस देन 4:1 और जनरली 2:1 यूज़ कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर 2.5:1 यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास जो सरफेस एरिया दैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ है, सरफेस एरिया 250 है, लेंथ हमारे पास 2.5 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, सो यहाँ से हमारे पास विड्थ आ जाएगी विच इज़ 10 मीटर और लेंथ जो है वो हमारे पास 25 मीटर्स आ जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम हमारे पास गिवन है, वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ गया 250 मीटर क्यूब। उसमें आप 20% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे फॉर द स्लज स्टोरेज वॉल्यूम, सो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज़ 625 मीटर क्यूब। Now you will calculate the depth of the tank. So volume is equal to length into width into depth. So यहाँ से आपके पास depth आ जाएगी which is 2.5 मीटर। 2 to 5 मीटर्स है, 2 मीटर्स आल्सो यूज, जैसे हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया में पढ़ा था। अब हमने कैलकुलेट करनी है सेटिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टू बी रिमूव्ड यूजिंग स्टोक्स लॉ। सो स्टोक्स लॉ हमारे पास वी एस इक्वल टू G/18 CS-1 म्यू इंटू डी स्क्वेयर। सो सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। Diameter of particles is also सो सेटलिंग वेलोसिटी भी आपको गिवन है, वहाँ से हम पार्टिकल की डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। सो 0.1 हमारे पास जो डायमीटर आएगा दैट इज़ 0.019 मिलीमीटर विच इज़ लेस देन 0.1 मिलीमीटर। सो इट्स इज लैमिनर फ्लो और स्टोक्स लॉ जो है एप्लीकेबल है इस न्यूमेरिकल के ऊपर। नाउ यू विल आल्सो चेक फॉर अ रेनॉल्ड नंबर विच शुड बी लेस देन 1, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको चेक कर लिया है कि आपके पास अलाउ हो रहा है कि नहीं। तो सिमिलरली न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी आपने इसी तरीके से कैलकुलेशंस करनी है, आपने डाटा लिखना है और उसके बाद आपने इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके जो है वो सेगमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन करना है।
सो प्रॉब्लम नंबर 3 में आपने डिज़ाइन करना है सेगमेंटेशन टैंक टू सर्व अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 पर्सनस विद एन एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ 350 लीटर्स पर कैपिटा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने जो है वो आंसर्स के साथ थोड़ी बहुत हिंट्स भी दी हुई हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये न्यूमेरिकल आपने परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो आपने फ़्लो फाइंड आउट करना है। यू हैव अ पॉपुलेशन एंड यू हैव एवरेज वाटर कंजप्शन दैट इज़ 50,000 पर्सनस इंटू 350 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। सो वहाँ पर आपके पास फ़्लो आ जाएगा इन मीटर क्यूब्स पर डे में। उसके बाद आपने एज्यूम करना है सरफेस ओवरफ्लो रेट। वो आप 20 से 33 मीटर पर डे के दरमियान में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 25 मीटर पर डे एज्यूम किया है। अब जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू सरफेस ओवरफ्लो रेट 25 मीटर क्यूब पर डे के अकॉर्डिंग है। सो आफ्टर एज्यूमिंग अ सरफेस ओवरफ्लो रेट वी विल कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक विच विल बी इक्वल टू 10 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिनिमम नंबर ऑफ टैंक्स 2 एज्यूम किए हैं और वहाँ पर मैंने ईच टैंक का एरिया कैलकुलेट किया है। उसके बाद लेंथ इनटू विड्थ रेशो जो है वो 4:1 होती है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन की हुई है दैट इज़ 3:1 को लेकर की हुई है। ठीक है, जब 3:1 हम लेते हैं तो हमारे पास जो विड्थ है वो 6 मीटर आती है, लेंथ 18 मीटर्स आती है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जम्पशन ऑफ डिटेंशन टाइम, जो कि हमारे पास 4 से 8 आवर्स के बीच में हम कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिडल वैल्यू ले ली है 6 आवर्स और उसके अकॉर्डिंग फर्दर कैलकुलेशंस किए हैं। सो 6 आवर्स डिटेंशन टाइम रख के मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है और 20% आपने स्लज का वॉल्यूम ऐड करना है तो आपके पास 787 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद मैंने डेप्थ ऑफ द टैंक फाइंड आउट की है विच इज़ द वॉल्यूम ओवर द सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, और सरफेस एरिया आपके पास लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, आपके पास जो डेप्थ है ये दैट इज़ 7.5 मीटर्स विच इज़ ग्रेटर देन द डिज़ाइन क्राइटेरिया। 3 to 5 मीटर डेप्थ है जो कि आपकी सेगमेंटेशन टैंक की होनी चाहिए, बट यहाँ पर 7.5 मीटर्स आई है जो कि ग्रेटर है देन 5 मीटर्स। सो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसका मतलब है कि जो आपने डिटेंशन टाइम एज्यूम किया है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप उसको डिटेंशन टाइम को रिड्यूस करोगे। So you will again recalculate the volume by using a smaller detention time. फिर आपने 4 आवर्स का डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना हो और डेप्थ कैलकुलेट करना है। मीन्स ये कि आपने स्मॉलर लेना है, जैसे कि आपने 6 पहले लिया तो आप 5 रख के वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। सो जिस पर हमारी डेप्थ 5 मीटर आएगी वो डिटेंशन टाइम आपने यूज़ करना है, वही वॉल्यूम यूज़ करना है और वही डेप्थ यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ वेयर लोडिंग रेट। वेयर लोडिंग रेट बेसिकली आउटलेट के ऊपर, जैसे कि हमने आपको मैंने पिछले स्लाइड्स में दिखाया था कि हम वेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब वो वेयर कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी वेयर लोडिंग रेट होनी चाहिए, यानी कितना फ़्लो पर वेयर जो है वो फ़्लो करना चाहिए। वो उसके लिए तो हमारे पास डिज़ाइन क्राइटेरिया है कि कितना फ़्लो पर मीटर क्यूब आपका एरिया लेंथ के ऊपर जो है वो फ़्लो करना चाहिए, दैट इज़ नोन एज वेयर लेंथ। ठीक है, और जो आपके पास वेयर लोडिंग रेट है दैट इज़ 250 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वेयर पर डे, मीटर स्क्वेयर पर डे। ठीक है, यानी 250 लीटर 2 रेटिंग रोड आपके पास है 250 मीटर क्यूब पर मीटर पर डे। ठीक है, सो आपके पास 250 आपने डिज़ाइन क्राइटेरिया लिया और वहाँ पर आपने वेयर लेंथ फाइंड आउट कर ली। वेयर लेंथ आपके पास 10.5 मीटर आई है। अब ये वेयर लेंथ हमने आउटलेट के ऊपर किस तरीके से वेयर कंस्ट्रक्ट करने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक का क्रॉस सेक्शन बना रही हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास विड्थ और लेंथ आ जाएगी। सो जो हमारे पास विड्थ है वो हमारे पास 6 मीटर्स आई थी। ठीक है, और हमारे पास जो लेंथ थी वो हमारे पास आई थिंक 12 मीटर थी जो हमने भी कैलकुलेट की है। सो लेंथ बेसिकली 18 मीटर्स है और विड्थ हमारे पास 6 मीटर है। 10.5 से का मतलब है कि जो वेयर हमने डालनी है या कंस्ट्रक्ट करनी है वो विड्थ वाइज जो आएगी वो 6 मीटर की आएगी। ठीक है, सो 10.5 माइनस 6 करेंगे, रिमेनिंग जो है वो आपके पास जो बची है दैट इज़ बेसिकली जो रिमेनिंग आपके पास बचेगी वेयर लेंथ दैट इज़ 10.5 माइनस
6, तो रिमेनिंग आपके पास बचेगी दैट इज़ 4.5। अब 4.5 मीटर्स को आपने टैंक के दोनों साइड्स पे प्रोवाइड करना है। सो 4.5 को हम डिवाइड कर देंगे ऑन 2 साइड्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.25 मीटर क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो मतलब ये कि आपने 10.5 मीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लॉन्गिट्यूडनल और विड्थ वाइज अलोंग द टैंक, जो आपने वेयर कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके बाद आपने डायमीटर ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है, एंड देन यू विल आल्सो चेक कि आपका लैमिनर फ्लो है और आपका जो स्टोक्स लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं। सिमिलरली न्यूमेरिकल नंबर 4 भी आप परफॉर्म करेंगे। सो इसके आंसर मैं आपको नहीं दे रही क्योंकि इतना कुछ मैंने आंसर्स दिए हैं, होपफुली यू विल ट्राई इट, एंड आफ्टर योर ट्राइंग आई विल, आप मुझे ये भेजेंगे और मैं इसको करेक्ट करके फिर आपको इसके आंसर्स बता दूँगी।